Hello, Shobha. Hello, good morning, sir. Good morning. Good morning. How are you? I'm very well, sir. Tell about yourself. Everything is going well. Thank you for asking. Okay, sir. It's okay. Okay, so I'm just waiting for other students. When they will come, we can start our classes. Okay, sir. No issue. Okay, and tell me Yes, sir. about your yesterday. You had some guests. Right, sir. Okay, were they from Nepal or from India or from where they were? Sir, they are from Nepal, but they live in India. Okay. That's Yes, sir. nice. Okay. So we are here for everything, and we will go ahead very soon. Okay, till then, maybe Tanya will comment. Tanya, Simran, what name? Their age is so long because when I remember, immediately they send me the message that to attend Oh, class. okay. Where are they? Where are they? What? Khushbu, yes, Khushbu is here. Khushbu is here. Hi, Khushbu. How's your day? Hello, sir. Good morning. Very good morning. How's your day? How your time? How your everything? Everything is good, sir. What's about you? I'm very well. I was sleeping very well. When I sleep well, my next day always well. I want to sleep so well. Okay. Can you see the screen that what we are talking, it converts into captions? स्क्रीन तो नहीं दिख रही मुझे. Hmm? Okay. Hello, Simran. Hello, Simran. Can you Good unmute morning. yourself? Yes, sir. Good morning. Very good morning. How your time? You can ask and send the greetings, everyone. Hi, Kushbu. Hi, Shobha. You can ask from everyone. Hi, Shobha. Hi, Khushbu. Good morning. Good morning. How are you? Um, I'm good. Tell about you. I'm also good. I'm also very good. That sounds great. Yes. Thank you for asking. Most welcome. Soon we will How was your start our yesterday class. day? Um, it was good, like the other days as usual. Mhm. Yes. Okay, great. And what's about you? How was your yesterday? Not so much good Why? because some guest has been come at my home and I have to do lot of work. I got tired. Okay. Yes. Okay. Yesterday, who was here? Who attended this class? I attend class. Okay. Okay, you attended the class. Can you explain what did you learn yesterday? Can you explain it to Shobha? Okay, sir. Yesterday, we learned models. Models are the auxiliary verbs which express the mood or attitude of speaker. जो Okay. इसमें अ, मतलब कि जो मॉडल्स होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जो स्पीकर होता है उसके एक्सप्रेशंस और मूड और उसके एक्सप्रेशन मूड और उसके एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं. अ, इसमें कुछ हमारी मेन मॉडल्स होती हैं जैसे कि शेल, शुड, विल, वुड, कुड, माइट, मे, कैन, मस्ट, नीड, आउट टू और यूज टू. Okay. फिर जो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स होती हैं जैसे कि एबिलिटी, जहाँ पे हम उनका यूज करते हैं मॉडल्स का, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशंस, ऑब्लिगेशंस, विलनेस और डिटर्मिनेशन. इसकी बहुत सारी जगह पे होती है जो मॉडल्स होते हैं. दे आर फॉलोड बाय द बेसिस फ्रॉम ऑफ अ वर्ब, दे नेवर कम अलोन. जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो जो जो हम वर्ब यूज कर रहे होते हैं उसके हिसाब से यूज होती हैं. और ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है ये यूज होती हैं और ये कभी भी अकेले नहीं आती हैं. दे डोंट हैव आईएनजी और ईडी फॉर्म्स. मॉडल्स हमेशा जो है वो अपनी रियल फॉर्म में होती हैं, उनमें आईएनजी और ईडी का यूज नहीं होता है. Okay. The number of gender or person of subject doesn't affect them. चाहे वो हमारे जो जिसमें वो होते हैं ना जेंडर्स होते हैं, फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर्स और मतलब जो भी वो हो गया पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनका जो है मॉडल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. और जब हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज कर रहे होते हैं तो नेगेटिव में मॉडल्स के बाद हम एकदम से नॉट का यूज करते हैं.
और जो टू जो होता है हमारा, टू ओनली यूज आफ्टर आउट टू यूज टू, मतलब जो हमारा टू होता है वो हम मॉडल के साथ यूज नहीं करते हैं, वो सिर्फ आफ्टर के बाद आता है, और आउट टू के बाद, आउट के बाद यूज के बाद आता है, यूज के बाद आता है और आउट के बाद आता है, वो आउट टू और यूज टू बन जाता है। और इनका सेंटेंस, इनका यूज हम इन्फिनिटी सेंटेंस, इन्फिनिटी के लिए करते हैं। इन्फिनिटी हमारी बेसिकली वो होता है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज करते हैं। फिर सर ने मुझे कहा था शैल, नॉर्मली जो होता है हम शैल का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए आई और वी के साथ, बट इन मॉडल सेकंड एंड थर्ड पर्सन आल्सो इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन नेसेसरी ऑर्डर थर्ड वी यूज शैल, मतलब कि जब हम मॉडल के रूप में शैल का यूज करते हैं तो वो हमारे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी यू और शी इट के साथ भी शैल का यूज होता है जब हम दे के डिटर्मिनेशन साथ की भी कर बात, सकते हैं। दे के वेरी साथ गुड। ही सर, जब हम डिटर्मिनेशन नेसेसरी और ऑर्डर्स और थ्रेड की बातें कर रहे हो, जो अ, जैसे हमने उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लिए थे, यू शेल रिस्पेक्ट अदर्स, ये हमारा ऑर्डर हो गया, इसमें हमने शेल का यूज किया है। यू शेल गेट अ प्राइज इफ यू स्टैंड फॉर, दे शेल क्लियर द ड्यू वर्ड्स। फिर हमने इसका यूज जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी किया था। शेल आई यूज योर पेन, ये हमारा रिक्वेस्ट हो गई। और फिर शेल वी बी वेस्टिंग आवर टाइम, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गए। शेल आई गो आउट फॉर अ फाइल, ये परमिशन हो गई। और अ, हमने लिखा था कल, और उसके अलावा दैट्स इट, हमने इसका दैट्स इट ना। आज हम टॉपिक करने वाले शुड का प्रयोग करने वाले हैं। अब देखो जो शुड है आपका वो किस काम आता है। शुड आता है तो आपका एक्सप्रेस करने के जो ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस होते हैं। जैसे मैंने कहा कि यू शुड कंट्रोल योर एंगर या यू शुड डू देयर वर्क सिंसियरली। शुड का प्रयोग किसके लिए आ रहा है? शुड एक हमारी मॉडल है, ठीक है, ऑक्सिलरेटिव मॉडल के रूप में इसको हम इसको यूज करते हैं। किसको? शुड को। किसके लिए? कर्तव्य के लिए बस। तो मैं एक के बाद एक आपको बताता जाता हूँ। स्क्रीन की तरफ बड़े ध्यान से देखना जो मैंने अपनी चीज बनाई है, तो आप इसको देखते जाना, ठीक है। तो हमारा ये इधर देखो, ये फर्स्ट आ गया आपका कि ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस। फर्स्ट हमारा क्या आ गया? ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस, इसके ऊपर हमारा, ठीक है, ठीक है, ओके सर। ओके। और अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर एडवाइस के ऊपर जैसे जा रहे हैं, जैसे कर्तव्य को कोई हम चीज व्यक्त कर रही है, तो यहाँ पे व्हेन यूजिंग शुड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इट सुजेस्ट्स दैट समथिंग इज द राइट और एक्सपेक्टेड, कि कोई चीज बिल्कुल सही है और एक्सपेक्ट की जा रही है, आशा की जा रही है किसी से। कोर्स ऑफ एक्शन, कि उसका जो कोर्स है उसका एक्शन क्या है, हम क्या एक्शन करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू शुड स्टडी फॉर योर एग्जाम, कि तुम्हें अपनी पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। शुड का मतलब वैसे चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक राइट थिंग है जो हमने ऊपर ये सीखा है, राइट और एक्सपेक्टेड। इसमें राइट कौन सी चीज है? हम सभी को एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? राइट है या रॉन्ग है? राइट है सर। राइट है, तो ये ऊपर राइट लिखा हुआ है, ठीक है। और एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्टेशन है कि जैसे माता पिता होते हैं या आपके सिबलिंग है, कोई भी है, तो वो कहते हैं कि हमारा जो भाई बहन है या हमारा बेटा हमारी बेटी है वो पास हो जाए, तो वो एक आशा कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उस यस सर। एक्शन के लिए, ठीक है। कन्वेज ए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, परंतु इस रिकमेंडेशन में एक चीज याद रखना कि इसमें आपको आदेश नहीं दिया गया, इसमें आपसे विनम्र प्रार्थना ही होती है ज्यादातर, क्योंकि आपको यहाँ पे मस्ट का यूज नहीं, मस्ट होते हैं जो स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गेस्ट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्ग गेस्ट, ठीक है। तो उसके ऊपर आप इसको यूज करते हो, दैट द पर्सन शुड स्टडी एज इट इज द एप्रोप्रिएट थिंग टू डू, ठीक है, ओके। प्रोवाइडिंग एडवाइस, एडवाइस कौन सी है? शुड कैन आल्सो बी यूज टू ऑफर एडवाइस और सजेशन। आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, सारा लिखा हुआ है आपके सामने, वैसे पावर पॉइंट में मैंने लिख लिया था कल की तरह, ठीक है। यस सर। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, यू शुड ट्राई दैट न्यू रेस्टोरेंट, कि तुम्हें नए रेस्टोरेंट के लिए ट्राई करनी चाहिए। एडवाइस की है ना उसने बंदे ने, ठीक है। यहाँ पे कोई समझो आपके यहाँ कोई मिष्ठान भंडार खुला था शोभा के वहां पे, पहले जहाँ पे रहती थी, तो हमने क्या कहा कि यू शुड ट्राई दैट न्यू रेस्टोरेंट नेम मिष्ठान भंडार, क्योंकि हमने सिर्फ एडवाइस दी, हमने ये नहीं कहा कि आपको नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, अगर आप वहाँ के समोसे नहीं खा के आओगे तो आप वापस जाके फेल हो जाओगे, ऐसा तो नहीं हुआ ना, सिर्फ एडवाइस दी गई, ठीक है। तो शुड कहाँ के लिए यूज हुआ आपका? एक एडवाइस के लिए भी यूज हुआ, राइट, ठीक है। अब आगे कौन रीडिंग करेगा? रीडिंग करनी भी आपको आनी चाहिए, आप इसे होल रीड। चलो मैं करा देता हूँ, हमने टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। इन हिंदी यूसेज ऑफ शुड कैन बी ट्रांसलेटेड एज चाहिए, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था, विच एक्सप्रेसेस अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन, वो भी आपको समझ आ गया, आशा करते हैं जो हम, तो हमें चाहिए, ठीक है। हमें किसी से सहानुभूति चाहिए, हमें किसी से मार्गदर्शन चाहिए, हमें अपने सर से इंग्लिश की कक्षा चाहिए, ठीक है। आपको अपने परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी क्या है? ये आपके ऑब्लिगेशन एंड एडवाइसेस है, ठीक है, ऑब्लिगेशन एंड एडवाइसेस। आगे बढ़ते हैं।
ओके, अगला है आपका एक्सप्रेसिंग प्रोबेबिलिटी व्हेन यूजिंग शुड टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है। वेरी गुड, ठीक है। और स्पेकुलेशन, इट इंडिकेट्स दैट समथिंग इज लाइकली और प्रोबेबली बट नॉट सर्टेन। जैसे हम कहते हैं कि ऐसा होता है लेकिन वो पक्का नहीं होता। सर्टेन क्या होता है? पक्का। सर्टेन का मतलब क्या होता है? पक्का। ये जो यहाँ पे सर्टेन लिखा है, सर्टेन का मतलब पक्का होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट शुड बी रेनिंग। इट शुड बी रेनिंग की रेनिंग होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए टुडे। जैसे गर्मी हमारे यहाँ पे 40 डिग्री से ऊपर चला गया, 45 के भी आसपास हो जाता है कई बार। तो हमने कहा कि ये सब होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि अगर नहीं है कि ऐसा तो नहीं होगा कि हम सभी घर के अंदर हमारा कोई पापड़ बना देगा भून भून के हम सभी का, ठीक है। तो बारिश हो जाएगी तो हमारे लिए अच्छा है, एक प्रोबेबिलिटी है उसके लिए। लेकिन अगर नहीं भी होगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है। हमें ठीक है, हम उसके आदी हैं, हम उसके बिना भी हम जी लेंगे, हमें कोई इसका फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, इट शुड बी रनिंग टुडे सुजेस्ट दैट इट इज प्रोबेबली बट नॉट अ गारंटी अकोरेंस, की इसमें कोई गारंटी भी नहीं है कि ये होगी, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है ये इसकी, ठीक है, संभावित चीज है, ठीक है। ओके, किस किस को समझ आएगी? यस सर। थोड़ा बहुत समझ आया सर, किसको समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया सर। एक और बार इसका मतलब समझाओ हमें। देखो, जी, प्रोबेबिलिटी और स्पेकुलेशन, इन दोनों का मतलब होता है अनुमान। स्पेकुलेशन का मतलब भी क्या होता है? अनुमान। अनुमान। दोनों क्या होते हैं? अनुमानित है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जो ट्रेन है ना वो आ जाती है 10 past 7 पे आ जाती है, दड़वा रेलवे स्टेशन पे आ जाती है। लेकिन आज क्या हुआ है, आज वो शायद नहीं आएगी। ऐसा कि उसको आना चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन के उसको आना चाहिए, उस चीज को आपके अंदर से प्रोबेबिलिटी है उस चीज की कि हाँ आना चाहिए, आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं आई, कोई गारंटी थोड़ी है कि ट्रेन उसी टाइम पे ही आएगी जो लिखा हुआ है। इंडिया अपना होता है कभी ऐसा कि कोई चीज बिल्कुल आपकी बिल्कुल टाइम पर हो जाए? होता है कभी ऐसा? नो सर। ठीक है ना। आपको कहा कि भाई आपका आधार कार्ड हफ्ते तक अपडेट हो जाएगा, कई बार 15 दिन भी लग जाते हैं। वो कहते हैं पीछे पीछे से इश्यूज हैं, सर्वर्स हमारे बिजी है, ये है वो है, प्रॉब्लम्स है। तो कोई चीज़ होती है, आपको कोई डेट देता है कि हाँ जी आपका जी परसों तक जी आपका वाईफाई कनेक्शन लग जाएगा। हुआ का परसों के आपके 7 दिन बीत गए, वो कहेंगे कि जी पीछे से हमारा जो बैकएंड है वही हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, शायद आपके यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। तो कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन एक आशा करते हो आप उस चीज़ को, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस करना प्रोबेबिलिटी को। किसको एक्सप्रेस करना? प्रोबेबिलिटी को, कि जो आपकी ये यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ओके, कन्वेइंग अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी कौन सी है? जो पक्की नहीं है, कन्वे कर रहे हो, किसी चीज को पास कर रहे हो, अनसर्टेनिटी है, कोई पक्का नहीं है किसी भी चीज का। द यूज ऑफ शुड इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, कि कोई पक्का नहीं है। एज अ स्पीकर इज नॉट मेकिंग ए डेफिनेटिव, डेफिनेटिव होता है पक्का, कोई पक्का स्टेटमेंट नहीं बना रहा है, नॉट मेकिंग डेफिनेटिव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे हम कोई भी चीज बोलते हैं वो एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। बट Right, sir. रेदर देन ए रिस्पॉन्सिबल, हाँ, बट रेदर देन ए रीजनेबल प्रिडिक्शन, बजाय कि एक रीजनेबल कहते हैं जिससे हम की कोई चीज पक्की है, ठीक है, कोई रीजनेबल है। जैसे हम कहते हैं कि किसी ने आपको कहा कि जी ये पेन है, इसकी कीमत 500 रुपए है, आप कहोगे ये रीजनेबल नहीं है, ये चीज ये बिल्कुल सही नहीं है। ये पेन ज्यादा से आपका 30 40 50 की से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी जो पेन होता है वो इतने महंगे नहीं होते हैं, आप 500 का दे रहे हैं, दैट्स नॉट रीजनेबल, कोई प्रेडिक्शन नहीं है इसकी। दिस कैन बी यूजफुल व्हेन डिस्कसिंग इवेंट्स और सिचुएशन वेयर देयर इज एन एलिमेंट और डाउट और स्पेकुलेशन इन्वॉल्व, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी वगैरह, जो पॉसिबिलिटी तो है लेकिन कोई पक्का नहीं है। यहाँ पे सिंपल 2 शब्दों में काम मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है लेकिन पक्का नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया शुड यू मीट माय फ्रेंड, कि क्या तुम मेरे दोस्त को मिलोगे? आपने किसी को कह दिया कि हाँ भाई तुम मेरे दोस्त को मिलोगे, लेकिन कोई पक्का तो नहीं है ना कि आप मिलोगे ही मिलोगे, ठीक है। Yes, sir. मैंने मैंने किसी को एक सलाह दे दी है, एक संभावना के अंतर्गत मैंने दे दी है, अनसर्टेनिटी के अंदर दे दी है, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे हिंदी में आते हैं। हिंदी मैंने क्या लिखा है? इन हिंदी दिस यूजेज ऑफ शुड कैन बी ट्रांसलेटेड एज चाहिए, विच एक्सप्रेस ए सेंस ऑफ, किसकी सेंस को बता रहा है? प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड को। फॉर एग्जांपल, आज बारिश होनी चाहिए, लेकिन ये कोई पक्का कोई गारंटेड तो नहीं है कि आज बारिश, आपने कह दिया, भगवान ने कान से सुन लिया, हाँ जी बेटा आपने कहा मैं अभी बारिश करता हूँ। होता है कभी ऐसा? No, sir. ठीक है, वो नेचर के हाथ में है, दैट्स नॉट इन आवर हैंड्स, दैट इज इन द नेचर, बट वी ओनली कैन एक्सपेक्टेशन, वी कैन हैव एक्सपेक्टेशन। मैं शोभा को कहूंगा, शोभा यू यू शुड वेक अप अराउंड 4। अब ये शोभा की मर्जी है वो उठे या ना उठे, क्योंकि वो मन में, क्योंकि ये कौन होता है मुझे कहने वाला? ही इज जस्ट ए टीचर। वो एक एडवाइस दे सकता है मुझे एडवाइस दे सकता है, पर ये कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता मेरी लाइफ में कि ये जो है कि मुझे 4 बजे सुबह उठेगा। तो मैं अपनी मर्जी से उठूंगी, इट इज माई लाइफ, आई विल वेक अप और नॉट, इट्स इन माई हैंड्स, इट इज माई प्रॉब्लम,
ठीक है, तो ये Right, एक sir. अभी सर ने जो आपको बताया, सर कोई आपका वो नहीं है कि आपके सिर पे डंडा लेके बैठा हो कि शोभा सुबह नहीं उठेगी तो उसको उठते ही डंडा बजेगा। ऐसा होता है कभी? तो No, sir. अभी जो हमने हमने एक प्रोबेबिलिटी और स्पेकुलेशन के अंदर यानी कि अनुमानिक अनुमान लगा के उसको बता दिया है। और अनुमान और किस चीज का लगाया कि यार अगले हफ्ते तक ना सूर्य ढल जाएगा, कम होना चाहिए, मतलब कि इतनी गर्मी पड़ गई है। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं और एक्सपेक्ट क्या करेंगे, सूर्य कम होना चाहिए। दोनों चीजें आ गई। Right, sir. अनुमान भी लगा रहे हैं कि गर्मी बहुत है और आशा भी कर रहे हैं, लेकिन ये गारंटेड नहीं है। इट इज नॉट गारंटेड कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि भगवान हमारा नौकर नहीं है। हमने कह दिया जा जाके वो सूर्य को थोड़ा ठंडा कर दे, पानी फेंक दे उसके ऊपर, थोड़ी गर्मी कम कर दे। ठीक है, वो वैसा ही होगा जैसा नेचर चाहती है। इट्स इन द हैंड्स ऑफ नेचर, नॉट इन अवर हैंड्स। ठीक है, ओके। अगला है एक्सप्रेसिंग रिग्रेट। रिग्रेट होता है पछतावा। पास्ट रिकमेंडेशन, जो पिछली आपको रिकमेंड चीजें की गई हैं, आगे हम समझते हैं इसको, एंड रिग्रेट्स को। द फ्रेज शुड हैव फॉलोड बाय अ पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए रिकमेंडेशन और सजेशन दैट वाज नॉट फॉलोड, कि जो पहले नहीं की गई हैं, आपको अफसोस है उस चीज को लेके। मुझे ना जाना चाहिए था, मुझे ठीक टाइम पे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, तब सर कहते भी रहे कि सीख ले। मैंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अभी टाइम भी निकल गया, ना मेरे पास टाइम है, जॉब भी आ गई है, लेकिन जॉब में ब्राइज़ भी नहीं कर सकी, मैंने इंग्लिश नहीं सीखी। इंग्लिश सीखूँगी तो फिर मैं जॉब कब जाऊँगी? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं एक रिग्रेट है, उसके अंदर एक पछतावा है, ठीक है? कि आई शुड हैव जॉइन्ड स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई शुड हैव कॉल्ड यू अर्लियर, जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि मुझे उससे पहले कॉल करनी चाहिए थी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया ना, ये देखो। आई शुड हैव, माउस दिखाई दे रहा है, माउस आपको मेरा, माउस जैसे हिल रहा है। Yes, sir. देखो, आई शुड Yes, हैव sir. कॉल्ड यू अर्लियर, है ना? आई शुड हैव कॉल्ड यू अर्लियर। अब शुड के साथ हैव का प्रयोग हो गया, ये किसको बताता है? ये बड़ी प्यारी चीज़ है, बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ है। शुड हाँ. हैव किसको दर्शाता है कि पास्ट में जब Past. आपकी कोई गलती होती है, उसको ठीक करने के लिए, उसके लिए अफ़सोस करने के लिए रह जाता है, कई बार वो हमारी पूरी नहीं होती, तो शुड हैव का प्रयोग होता है, ठीक है? जैसे मैंने कहा Yes, sir. आई शुड हैव टेकन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस फ्रॉम जो भी आपके थे सर, Mhm. ठीक है? लेकिन बट नाउ द टाइम हैज़ पास्ड, आई हैव नो चांस मोर। ठीक है? किसके लिए आया हमारा शुड का प्रयोग? रिग्रेट के लिए, एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको। किस-किस को ये समझ आई? तो बहुत ईज़ी था, Yes, sir. ठीक है? ओके। और अब इसमें क्या है कि एक स्पीकर जो बोलने वाला है, रिग्रेट्स नो मेकिंग द कॉल अर्लियर, कि अब यहाँ पे उदाहरण, इसने उदाहरण के नीचे को दर्शा दिया, आई शुड हैव कॉल्ड यू अर्लियर, कि मुझे आपको, ये देखो यहाँ पे, मुझे आपको पहले फ़ोन करना चाहिए था, लेकिन अब क्या, अब उसको पछतावा हो रहा है क्योंकि वो तो जा चुका है बंदा, ठीक है? कन्वेज द आइडिया दैट स्पीकर रिग्रेट्स नॉट मेकिंग द कॉल अर्लियर, या ऑन द टाइम भी इधर लिख सकते हो। एज़ दे बिलीव इट, ठीक है? जैसा कि विश्वास है उसको, वुड हैव बीन द बेटर कोर्स ऑफ एक्शन, कि ये देखो कितनी प्यारी चीज़ है, वुड हैव बीन द बेटर कोर्स ऑफ एक्शन, कि ऐसा अच्छा हो सकता था, वुड हैव बीन, हो सकता था, वुड हैव बीन, ये ऐसा हमारे हाथ में था, ये कोर्स हमारे हाथ में था किसका, एक्शन करने का, लेकिन हमने उसको अनफॉर्चुनेटली हमने उसे यूज़, ठीक है? ओके। मिस्ड अपॉर्च्युनिटीज़ नीचे आ गया आपका, तीसरे नंबर है मिस अपॉर्च्युनिटी, सेकंड नंबर पे सॉरी। मिस अपॉर्च्युनिटीज़ कौन-सी हैं? द यूसेज ऑफ शुड अलाउज द स्पीकर टू रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट डिसीजन और एक्शन। जो पास्ट डिसीजन, जो कि मैंने ऊपर ही आपको बता दी, जो कि हमारी टाइटल है, हेडलाइंस है इसकी, कि उसका पास्ट रिकमेंडेशन एंड रिग्रेट, ये ऊपर वाला जो है यही नीचे है। यूसेज ऑफ शुड अलाउज, किसको अलाउ करता है? शुड किसको अलाउ कर रहा है? बोलने वाले को। किसके लिए? जो उसका रिफ्लेक्शन दे रहा है पास्ट डिसीजन और एक्शंस को, कि अगर मैं सही टाइम पर थोड़ा आध्यात्मिकता होती, मैं थोड़ा ठीक टाइम पे मेडिटेशन करती, भगवान की तरफ समर्पित होती, डिवोटी होती, तो शायद आज मेरे मन में इतनी अशांति ना होती। आज मेरे अंदर बदले की भावना ना होती। आज मैं सबके साथ प्यार के साथ व्यवहार कर रही होती या कर रहा होता। शुड अलाउज टू स्पीकर टू रिफ्लेक्ट द पास्ट डिसीजंस और एक्शन एंड एक्सप्रेस ए बिलीफ। बिलीफ होती है मान्यता, जो आपके अंदर चीज़ें चल रही हैं, जिस पे आप विश्वास करते हो। ठीक है? दैट एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन वुड हैव बीन मोर एप्रोप्रिएट और बेनिफिशियल, कि ये और अच्छा हो सकता था, ये और अच्छा होता। क्या चीज़ अच्छा होती? अगर हम पीछे में जाके उसको ठीक करते। इट कैन बी अ वे और टू एक्नॉलेज मिस्ड अपॉर्च्युनिटीज और लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है? एक रास्ता निकल सकता था, एक रास्ता होता, किसके लिए? जो हमारी मिस अपॉर्च्युनिटीज हो चुकी हैं, या लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ठीक है? ओके। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आ गई हैं। अब हाइपोथेटिकल क्या होती है? इमेजिनेशन होती है, सिंपल सिंपल कुछ नहीं है ये, इमेजिनेशन है। अगर ऐसा होता तो वैसा होता। अगर अगर मेरे अगर मेरे घोड़े के 2 पर होते तो मैं उसके ऊपर बैठकर लंदन की सैर करके आता, पर ऐसा होता तो नहीं, घोड़े के 2 पर होते हैं। No, sir. 4 टांगे होती है, sir. 4 टाँगें होती हैं। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ गई है, मतलब कि कौन-सी सिचुएशन आ गई है? एक काल्पनिक, Hypothetical. हाँ, हाइपोथेटिकल होती है काल्पनिक सिचुएशन। कल को अगर आप कहीं पे एग्ज़ाम देते हो, तो ये कई जगह आते हैं कि व्हाट डज़ इट मीन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो आप कह सकते हो हाइपोथेटिकल सिचुएशन इज़ नोन एज़
द इमेजिनेशन। अभी नीचे चलते हैं, कंस्ट्रक्टिंग हाइपोथेटिकल पोजीशन, तो हमने यहाँ पे कर देते हैं व्हेन combined with the conditional would। अब would का प्रयोग है, the use of should can create hypothetical situation। For instance, the sentence if I saw a ghost। अगर मैं एक भूत देखता, सा आ गया ना, सी सा सीन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। अगर मैंने भूत देखा, या देखता भी लगा सकते हो, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आई शुड रन अवे, तो मुझे वहां से भाग जाना चाहिए। अगर मैं वहां पे भूत देखूंगा, एक किस्म का पास्ट की बात कर रही हो, प्रेजेंट के अंदर कल्पना को लेके कि मुझे वहां से भाग जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं वहां पे भूत देखता हूँ, देखो यहाँ के वुड का प्रयोग होता है, शुड का प्रयोग होता है ऐसी जगहों पर। ठीक है, तो इफ आई सा अ गोस्ट, अगर मैं भूत देखता तो मुझे भाग जाना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये हिंदी है, अगर मैं भूत देखता तो मुझे भाग जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं भूत देखता तो मुझे भाग जाना चाहिए। तो आई डोंट नो अबाउट योर केस, you will run or not, but definitely I will run। I also run, sir. Who else more will run? I also, sir. I hide from also, the ghost, sir. I also. लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं Okay, sir. कि if I be with my students, then I should not run away because I know students are behind me। Yeah. Okay, present say hypothetical scenario of suggests and appropriate response even though the initial event seeing a ghost may not have actually occurred। कि असल में होते नहीं है, लोग कहते हैं कि नहीं होते, लेकिन मैं मानता हूँ कि होते हैं, लेकिन हमें तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है कि जो एक रियलिटी है। लेकिन आई नो दैट घोस्ट एग्जिस्ट्स, लेकिन मैं आपको हमारी ये क्लासेस से, अभी ये हमारा बिजनेस नहीं कि मैं आपको ये समझाता फिर वो क्लास से हटके हमारा टॉपिक और कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, मे नॉट हैव एक्चुअली अकर्ड। ठीक है, ओके। एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज, एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी कौन सी होती है, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, उनकी पॉसिबिलिटी, उनको संभावना को। द यूसेज ऑफ शुड अलाउज द स्पीकर टू एक्सप्लोर इमेजिनरी। ठीक है, तो वही चीज आपकी आ गई ऊपर, जो एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहले क्या था कि कंस्ट्रक्शन उसको बना रहा है बैठे बैठे, कि भूत होता तो ऐसा होता, अब वो एक्सप्लोर कर रहा है, दोनों में फर्क है। ऊपर वाले में बना रहा था, कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, नीचे क्या कर रहा है, उसको एक्सप्लोर कर रहा है, उसको ढूंढ रहा है चीज को। कहाँ पे ढूंढ रहा है, स्पीकर टू एक्सप्लोर इमेजिनरी और स्पेकुलेटिव सिचुएशंस कंसीडरिंग हाउ दे माइट रिएक्ट। ठीक है, कि वो कैसा रिएक्ट करेगा। कंसीडरिंग मतलब क्या होता है, समझना। कंसीडर मतलब समझना, अंडरस्टैंड भी समझना, मतलब कंसीडर का मतलब भी समझना, लेकिन दोनों में फर्क होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको फर्क समझाने बैठूंगा तो हमारा ये आज ये रह जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे याद करा देना कि सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंसीडरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ओके। देखो अब यहाँ पे माइट रिएक्ट, व्हाट दे माइट टू डू पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, की एक विशेष जो सर्कमस्टेंस होते हैं, सर्कमस्टेंस कहते हैं अवस्थाएं। ऐसी अवस्था होगी, सर ऐसा सर्कमस्टेंस था कि मुझे वहां से भागना पड़ा, ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे वहां से भागना पड़ा, ऐसी कंडीशन थी कि ये सारे प्रायवाची एक दूसरे में सिनोनिम्स है सर्कमस्टेंस। इट कैन बी अ यूजफुल टूल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग और सिंपली एंगेजिंग इन क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव थिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको आगे इसका एक उदाहरण दे दूंगा, अभी हम इसकी पहले हिंदी देख लेते हैं। इन हिंदी दीज हाइपोथेटिकल यूसेज ऑफ शुड कैन बी ट्रांसलेटेड एज चाहिए। ठीक है, ऑफन इन कॉम्बिनेशन विद द कंडीशनल वुड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बूथ देखता तो मुझे भाग जाना चाहिए। अगर अगर वाली बात आती ना, अगर अगर मैं छत को देखता, 7वीं मंजिल पे खड़ा खड़ा होता, अगर मैं 7वीं मंजिल पे खड़ा होता तो मुझे फौरन लिफ्ट लेके नीचे भाग जाना चाहिए। हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपकी आ रही है। ठीक है, अगर ऐसा होता। अगर वैसे ही वो कह देती है, सिमरन कह देती है कि सर अगर हमारे वहां पे बाढ़ आती है झारखंड में, तो सर मैं कैसे, मुझे तैरना भी नहीं आता, तो किश्ती भी नहीं होगी, तो मैं वहां पे, अभी ये बैठे बैठे कल्पना कर रही है, ऐसा है नहीं, अभी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है उसकी। ठीक है, ओके। अगला ऑफरिंग एंड सुजेशंस। ठीक है, ऑफरिंग एंड सुजेशंस है, पहले हम पढ़ लेते हैं, बाद में आपको सारा करता है। इसको रीडिंग करो, चलो आज से ये भी आदत डालो। हु विल रीड? Formal offers. Hmm. In formal context, should can be used to politely offer something such as a service or assistance. For example, the question, "Should I get you a cup of tea?" Suggested the speaker is willing to prove the coffee, and it asks Provide. for the provide provide the coffee, and is asking for the listener's preference. प्रेफरेंस। देखो अब इसका मतलब समझते हैं, यहाँ पे ये लिखा है फॉर्मल। दुनिया में दो चीजें होती है, एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होती है, जिसमें आपको सिर्फ
दिखावा करना होता है कि हाँ मुझे कपड़े अच्छे डालने हैं, प्रेस किए हुए डालने हैं, मुझे ऑफिस जाना है, टाई लगानी है, मुझे अच्छे शूज और पॉलिश किए हुए, और ऑफिस में जाके मुझे बहुत फॉर्मल शिष्टाचार दे के एक औपचारिकता से बात करनी चाहिए। औपचारिकता है जिसे कहते हैं फॉर्मल। आप किसी की शादी में जाते हो, वहाँ पे किसी को शगुन देते हो, ये औपचारिकता है। चाहे आपका दिल है या नहीं है, आपको शगुन देना पड़ेगा। 500 एक 1000 एक 2000 एक आपको शगुन देना पड़ता है, क्योंकि हमारे इंडिया के रिचुअल्स हैं ये, रीति रिवाज है ना? नेपाल के भी है, इंडिया के भी है, हमारे सारे ये रीति रिवाज है, हम इनके विरुद्ध नहीं जा सकते। ठीक है, तो एक फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मल किससे बना? फॉर्मेलिटी ही इसके साथ बनी है। ठीक है, तो इसको ऑफर कर रहे हैं, फॉर्मल ऑफर्स कर रही हैं कि यहाँ पे सीधा एग्जांपल के ऊपर आते हैं। पोलाइटली देखो यहाँ पे कितनी प्यारी, कैन बी यूज्ड टू पोलाइटली। पोलाइटली चीज बड़े आप विनम्र होके किसी चीज के लिए, समथिंग किसी चीज के लिए ऑफर कर रहे हो, सच एज ए सर्विस, एक सेवा आप किसी को दे रहे हो, सर्विस के लिए असिस्टेंस कर रहे हो। जैसे ऑफिस में जाते हो तो कहते हैं ना, हाउ मे आई हेल्प यू, तो वो एक क्या बहुत पोलाइट वे में आपकी सर्विस दे रहा है सामने वाला जो रिसेप्शन पे खड़ा है या खड़ी है। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन, शुड आई गेट यू ए कप ऑफ टी? ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला? क्या मैं आपको एक कप कॉफी, क्या मैं आपके लिए कप कॉफी लेके आऊं? शुड आई गेट यू अ कप ऑफ कॉफी? शुड आई फेच भी लगा सकते हो, शुड आई Yes, sir. फेच यू अ कप ऑफ कॉफी भी लगा सकते हो। फेच का मतलब भी लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने Okay. गेट का प्रयोग किया, फेच का यूज किया। इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस व्हाट वोकैबुलरी, एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी यू विल यूज, इट्स इन योर हैंड्स। ओके, यू अ कप ऑफ कॉफी सुजेस्ट्स द स्पीकर इज विलिंग, उसकी इच्छा, कल मैंने बताया था विलिंग क्या होती है? इच्छा। अच्छा, सुजेस्ट द स्पीकर इज विलिंग टू प्रोवाइड, उसकी इच्छा क्या है? प्रोवाइड करवाना, किसी को कोई चीज देनी। प्रोवाइड का मतलब किसी चीज को देना, वैसे प्राप्त करना भी होता है प्रोवाइड का मतलब। जैसे मैं कहता हूँ कि सर हमें पीपीटी फाइल कब प्रोवाइड करवा दोगे, कब तक हमें दे दोगे? ठीक है, कोई चीज प्राप्त हो जानी। प्रोवाइड द कॉफी एंड इज आस्किंग फॉर द लिसनर्स प्रेफरेंस। ठीक है, मतलब समझ आया इसका? कि जो विलिंग है, जो बोलने वाला है, वो जैसे समझो कि मैं खुशबू के घर गया, तो खुशबू कहती है, सर शुड आई फेच वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू? ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि देखो उसने कितने पोलाइट वे से बात की, तो मैं कहूंगा कि यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, इफ यू वांट, इफ यू हैव फीलिंग, यहाँ पे अगर आपकी इच्छा है टू प्रोवाइड द जो भी वाटर कॉफी, तो उसने आस्किंग की है। ठीक है, समझ आ रही है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आप इसकी वर्डिंग भी देखोगे तो आपको इमीडिएटली समझ आ जाएगा लिखा क्या हो। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर, No, sir. ओके, अब सेकंड है, जहां पे डाउट हो हेजिटेट नहीं होना, वहीं से पूछना कि सर मुझे यहाँ से समझ नहीं आया, क्योंकि किसी बच्चे को उसी टाइम समझ आता है, किसी को उसके 2 बार समझाने के बाद समझ आएगा। तो पर कोई इसका वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी को वही चीज पहले समझे, किसी को बाद में। ठीक है, आपने इस चीज Okay, को अपने sir. दिमाग में हमेशा लेके चलना है कि ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है पूछना कि सर हमें ये बताओ जो चीज हमारी चल रही है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मैं एक सरकारी ऑफिसर की तरह रूड इंसान बन जाऊंगा। ठीक है, राइट? Yes, sir. ओके, अब मेकिंग सजेशंस है, सजेशन दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना सुबह कि शोभा यू शुड वेक अप अराउंड 5:30, तो मैंने सिर्फ सजेशन दिया। मैं ये नहीं कह सकता कि शोभा, क्योंकि मैं इसके फादर नहीं हूँ, मैं इनके घर का कोई ऐसा सदस्य नहीं जिसके एक राइट हो बोलने का कि हाँ शोभा तुमको सुबह उठना पड़ेगा, नहीं तो तुम ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। मैं एक टीचर होने के नाते सिंपल सा कह सकता हूँ कि देखो आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप सुबह उठोगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। क्या होता है उससे? मेक्स हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्पेरियस टाइम। ठीक है, आपको हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है इससे, जितना सुबह आप उठते हो। ठीक है, ओके। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कैन आल्सो बी अ वे टू मेक सजेशंस और रिकमेंडेशंस विदाउट बीइंग ओवरली डायरेक्टिंग। ठीक है, कि सीधा सीधा नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें हम सजेशन वगैरह दे सकते हैं। इट अलाउज द स्पीकर टू ऑफर एन आइडिया। स्पीकर क्या कर रहा है? या पे एक आइडिया दे रहा है, या अपनी एक पॉसिबिलिटी को बता रहा है फॉर द लिसनर टू कंसीडर, कि उसको समझे। ठीक है, फॉर द लिसनर टू कंसीडर, यहाँ पे अंडरस्टैंड भी लगा सकते हैं, लिसनर टू अंडरस्टैंड, लेकिन कंसीडर के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है। ठीक है, रेदर देन सिंपली टेलिंग देम व्हाट टू डू, कि मैं आप सभी का एक टीचर हूं, मैं आप सभी का एक बॉस नहीं हूं। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये करो वो करो ऐसा करो, डू दिस डू दैट। इट इज नॉट माय राइट, आई ओनली कैन गिव यू सजेशन, आई कैन ओनली गिव यू इन ए पोलाइट वे सजेशन दैट यू शुड डू एवरी डे योर होमवर्क on time, so I can judge what is you are on which level in English, so I can prepare your more lessons according to your homework. Okay, okay. Yes. Hindi translation in informal Hindi, these usages of should can be translated as क्या लाऊं, ठीक है, which express a polite offer suggestion। for example, क्या मैं आपको एक कॉफी ले आऊं, मतलब कि सिंपल क्या मैं आपके लिए कॉफी का कप ले आऊं, इसका कहने का ये मतलब। ओके, ये मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा, इसको आपने पढ़ना है। जहां पे नहीं समझ आएगा वहां पे आपने मुझसे पूछना है, क्योंकि मैं आपको सारा समझा दूंगा, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको सारा समझाऊं।
ठीक है, आपको ये मैं सेंड कर दूंगा, ये पीपीटी मैं बनाता हूँ तो मैं ये आपको सेंड कर दूंगा। जहाँ से नहीं समझ आएगी मैं वहीं पर आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आप जैसे कहोगे सर हमें ये लाइन नहीं समझ आई, तो मैं आपको उस टाइम रिकॉर्डिंग, ताकि आपका टाइम जो है सेव होता जाए साथ साथ। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अगला कौन रीड करेगा इसको? Criticized language using should appropriately can have English language learners in India communicate with greater clarity and nuance, allowing them to convey their intended meaning more effectively, contextually, contextual awareness, developing an understanding of the various uses of should and the ability of interpret it within different contexts in crucial for successful communication in both personal and professional settings. Confidence in expressions, mastering the use of should can boost the confidence of English language learners as they become better equipped to express themselves. equipped है ये, better equipped to express themselves accurately and again Engage. engage in more meaningful conversations. Conversations. ठीक है, एक दिन आप ना एक चीज इस चीज का लो, देखो एक चीज याद रखना, बोलने का भी हमें आना चाहिए। अभी कितने वर्ड्स हमने मिसिंग किए हैं इसमें बोलते बोलते, जहाँ पे आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत मतलब कि बहुत अच्छी नहीं थी, आई कैन से, ठीक है, लो लेवल पे चली गई थी। तो हमें उस पर भी सुधार करना है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश है तो स्पीकिंग तो है ही है ना हमारी, बिना स्पीकिंग के हमने सिर्फ समझ लिया, लेकिन जैसे टाइम आया इक्विप्ड का तो आप उससे भूल जाओगे, एक अपर्टिक कहोगे, एक्यूरेट को करेक्टली कहोगे, कन्वर्सेशन कुछ और बोल दोगे, तो वो के सामने वाले के आप जो आप कन्वे करना चाहते हो मैसेज उसको नहीं मिलेगा, और आपका एक इंप्रेशन बहुत बैड पड़ेगा, आपका एक इम्पैक्ट जो है उसके ऊपर बहुत बैड पड़ जाएगा चीज के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा, मैं कुछ इनसे सोच भी रहा था कि मुझे ये ऐड करना चाहिए था, क्योंकि जब मैंने अमेरिका से क्लासेस की थी तो हमारा 2 दिन होता था सिर्फ रीडिंग का, कि हमें रीड करना है, मैक्सिमम चीजें रीड करनी है, उससे आपको आदत पड़ जाती है, आपकी हैबिट अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो चलो पहले आप इसको करते हैं, कल्टिवेटिंग प्रिसिशन ऑन इन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब देखो कल्टीवेटिंग क्या होता है, कल्टीवेट होता है वैसे खेती करना, लेकिन कल्टीवेट हम इसमें किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं विकसित करने के लिए। ठीक है, और प्रीसिशन क्या होता है आपका, ये होता है किसी चीज को जिसे हम कहते हैं विकसित करना, कोई चीज को ग्रो कर देना। ठीक है, ओके। कम्युनिकेशन क्या होती है, जो आपका बोलने का संचार होता है, जो कि माध्यम होते हैं बोलने के, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रिसाइज लैंग्वेज, ठीक है, यूजिंग शुड एप्रोप्रिएटली कैन हेल्प इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स इन इंडिया कम्युनिकेट विद अ ग्रेटर क्लैरिटी एंड nuance, allowing them to convey their intended meaning more effectively। शुड जब हम यूज करते हैं तो हमारा एकदम क्लियर हो जाती है चीजें। ठीक है, हेल्प कर सकती है हमारी इंग्लिश में, जैसे हम इंडिया में कम्युनिकेशन करती है एक क्लियरिटी के साथ। ठीक है, allowing them to convey their intended, अलो करता है दूसरों के कन्वे करने को, किस चीज के, उनका जो इरादा है। इंटेंशन क्या होती है, इरादा, इंटेंशन से बना इंटेंडेड मीनिंग। ठीक है, इंटेंडेड मीनिंग मोर इफेक्टिवली, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जितना भी आपको पढ़ा है ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, अभी हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, क्योंकि आपको ये समझाना था, हमने बता रही है, तो ये हमारा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, 2-3 स्लाइड्स हमारी और बची हैं, मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ, जितना मैं बताऊंगा आपको समझ आती जाएगी, हम उसके ऊपर वर्कआउट करते जाएंगे। ठीक है, और इसको मैं पहले बंद कर दूं, स्टॉप शेयरिंग। ओके, देखो यहाँ पे मैं आपको एक फाइल देता हूँ बना के, ताकि आपको ये आ जाए समझ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। Okay, so for English, देखो अभी यहाँ पे समझते जाना जो मैं करते जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। तो मैं इसको शेयर भी करता हूँ। अब देखो, अब ये ध्यान से देखते जाओ, हमारा शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ पे है। देखो, पहला शुड का प्रयोग है ड्यूटी, इसके अंदर आपकी ऑब्लिगेशन आ गई है, ड्यूटी, Yes. ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कहते हैं कर्तव्य, जिसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं दूसरे शब्दों में, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक ये होगा, एक का उदाहरण ले लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि यू शुड कंट्रोल योर एंगर।
कि तुम्हें अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन आ गई, ठीक है। एक्सप्रेस कर रहे हैं ड्यूटी के लिए, एक्सप्रेस कर रहे हैं किसको, ड्यूटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं इसमें, ठीक है। दे शुड कम ऑन टीम क्लास, दे शुड कम ऑन टीम क्लास ऑन राइट टाइम, ठीक है। ओके, हमारा एक हो गया। नंबर 2 हमारा क्या है, जो हम कहते हैं एक्सप्रेस करते हैं सुपोजिशन। सपोजिशन क्या होता है हमारा, मैं आपको इधर ब्रैकेट में लिखता हूँ। सपोजिशन का मतलब क्या होता है, जिसमें कहते हैं सपोज करते हैं, यानी कि हम एक कल्पना करते हैं। सपोज आप बैंक में 20 करोड़ रुपए जमा करा दो, अभी ये कल्पना है, कल को ये सत्य भी हो सकती है, ठीक है। ओके, पॉसिबिलिटी संभावना, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, कंडीशन। कंडीशन आपको पता है, इसकी हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, कंडीशनल जो चीजें होती है, ठीक है, कंडीशन लगाई हुई है। जैसे एक एक उदाहरण ले लेते हैं। मैंने कहा कि शुड यू मीट माय फ्रेंड कन्वे दिस मैसेज, कि तुम्हें मेरे दोस्त को मिलना चाहिए और ये मैसेज को दे देना चाहिए। हालांकि उसके ऊपर कोई तलवार लेकर नहीं खड़ा कि वो मैसेज नहीं देगा तो उसका जो सर है वो गर्दन अलग कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड है, इफ इट शुड रेन। अभी हमारे क्या चल रही है, मॉडल वर्ब्स चल रही हैं, ठीक है, ये याद रखना, हमारी मॉडल्स चल रही हैं। वी शैल गो फॉर अ पिकनिक, ठीक है। थर्ड है हमारा, जिसे मैं कहता हूँ कि एक्सप्रेस करते हैं सुजेशन को। सुजेशन होगी, एडवाइस हो गया, जहां इन सभी जगहों पे आपका सजेशन एडवाइस में हम सर ऐसे नहीं बोल सकते, यू शुड कम ऑन टाइम। हेलो Hello, Gary sir. you don't know. Sir is Okay, here due to power cut for little time. I am again back. मेरा जब भी पावर कट होता है तो साथ में लाइट आ जाती है, लेकिन वाईफाई को ऑन होते हैं ना टाइम लगता है। वाईफाई होता है ना वो दो या 3 मिनट ले लेता है ऑन होते हुए। जैसे लाइट जाती है ना, पावर कट होते एकदम से दोबारा आता है, तो फिर उसकी Yes, लाइट्स sir. वगैरह वो चलती हैं, तो वो 1-2 मिनट तो ले लेता है वो। तो आप जाया मत करो, आप यहीं पर वेट कर लिया करो, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा बैटरी बैकअप है इस टाइम पर वाले, ठीक है। तो Yes. अच्छा, मॉडल हमारे ना शुड हमारे 8 जगहों पे यूज होते हैं, शुड हमारे 8 जगहों पर यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैं शेयर कर भी रहा हूँ आपको, देखो। अब ये हमारा सुजेशंस के लिए आ गया, एडवाइस और इन्फेरेंस के लिए आ गया, ठीक है। इन्फेरेंस क्या होता है, निष्कर्ष बताना। इन्फेरेंस क्या होता है, निष्कर्ष होता है, किस चीज का रिजल्ट बताना, उसमें से क्या तात्पर्य निकला है। तो मैं कहता हूँ यू शुड टेक लेस शुगर, तो यू शुड टेक लेस शुगर। क्यों हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है, किसी आदमी को डायबिटीज है, ड्यू टू डायबिटीज। किसी को मधुप्रमेह हो सकता है, तो उसके लिए उसको, ये डॉक्टर ने कहे ना कहे, लेकिन आजकल पड़ोसी खुद ही बता देते हैं कि आपको जो लेस शुगर लेनी चाहिए। तो ये शुड का प्रयोग है, सुझाव दिया गया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको क्या दिया, एक सलाह दी है। जैसे मैंने कहा माय फादर शुड हैव रिटर्न्ड बाय नाउ, ठीक है, कि मेरे पिताजी को वापस आ जाना चाहिए, ये एक सलाह है। फोन करके कह रहे हैं कि पापा यू शुड हैव रिटर्न्ड बाय नाउ, कि तुम्हें अभी आ जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन पिताजी अभी तक नहीं आए, तो वैसे बता रहे कि
मेरे पिताजी को आ जाना चाहिए था, माई फादर शुड हैव रिटायर्ड बाय नाउ, अभी तक आ जाना चाहिए था। लिख ही देता हूँ, चलो मैं आपको ये मुझे दिमाग में आया तो ये लिख देना चाहिए। माई फादर शुड हैव मतलब चाहिए था, शुड हैव का मतलब रिग्रेट, पास्ट में किए गए गड़बड़ी जिसको भुगतान कई बार होता है और कई बार नहीं होता। रिटर्न रिटर्न माई फादर शुड हैव रिटर्न बाय नाउ, कि मेरे पिताजी को अभी तक आ जाना चाहिए था। अच्छा आगे के साथ कह रहा होगा, ठीक है, ओके। दे शुड कीप देयर वर्ड, ठीक है, दे शुड कीप देयर वर्ड। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब है कि उसको हाँ अपने वर्ड रखने चाहिए। कोई बंदा पल में तोला, पल में माशा अपने बातों से पलट जाता है, मतलब बता ठीक है, यस सर। उसको हम कहते हैं कि कीप द वर्ड, कीप देयर वर्ड, ठीक है, ओके। 4 में आज करा देता हूँ, 4 में आपको कल करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप सभी का टाइम भी हो रहा है, हमारा सिलेबस काफी पड़ा अभी करने वाला, बहुत अभी हमारा सिलेबस हमें करना है। उसके बाद आपकी ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, कि मैं बोलते हुए पता लगना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, उसके सेंस क्या निकल चाहिए, ठीक है, ओके। टू एक्सप्रेस पर्पस, कल हमारा शल हुआ था मॉडल, आज हमारा हाफ ये वाला खत्म है, शुड वाला, ठीक है, फिर हमारा जी। चलेगा विल वाला, ऐसे एक के बाद एक चलते जाएंगे, ओके। पर्पस एंड रिजल्ट, एक्सेट्रा वर्किंग वगैरह वगैरह जो होता है, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एक्सप्रेस किसको करता है, उद्देश्य को या नतीजे को एक्सप्रेस कर रहा है। किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, उद्देश्य या या नतीजे। नतीजे, वेरी गुड, नतीजा Purpose and उसको एक्सप्रेस result. कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक उदाहरण इसका ले लेते हैं, इसका नतीजे, उसका उद्देश्य का। मैंने कहा कि शी स्पोक स्लोली, शी स्पोक स्लोली so that none should overhear her। देखो कितना प्यारा कि उसने धीरे बोला क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई उसको सुने, ओवर हियर, उसको कोई किसी को नहीं सुनना चाहिए, ठीक है, उसको नहीं सुनना चाहिए। अभी देखो ये ऐसी चीजें शुड वाली, एक आपको याद होगा मैंने आपको 2000 कब कराया था, मैंने शोभा को कराया था 2021 में, वो सबसे ऊपर वह जहाँ पे हम 3 वाली छत पे जाते थे पढ़ने के लिए, याद है शोभा? Yes sir. तो वहां Yes पे मैंने sir. कहा था कि I कहाँ जाऊं, remember वेयर that. टू गो, याद आ गया, वेयर टू गो, वेयर टू Yes ईट, sir. व्हाट टू ईट। तो ये सारे क्या था कि क्या खाऊं, मुझे खाना क्या चाहिए, असल में क्या है, वेयर टू गो, कहाँ जाऊं। ये कहाँ जाऊँ? ये जो वेयर टू गो है ये इंग्लैंड की इंग्लिश है, और अमेरिकन इंग्लिश क्या कहेगी आपको, वेयर शुड आई गो। मतलब दोनों Where का should एक I है, go? वेयर टू गो और वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ जाऊं या मुझे कहाँ जाना चाहिए, दोनों का मतलब एक है। इसी तरह से ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो इसको इसके कॉन्टेक्स्ट में ये दी गया, शी स्पोक स्लोली सो दैट नॉन शुड ओवर हियर हर, कि वो धीरे बोली, स्पीक स्पोक सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट Yes इंडेफिनिट sir. आ गया, शी स्पोक स्लोली, वो धीरे बोली, किस लिए बोली, सो किस लिए यूज होता है, जो हम बिकॉज कहते हैं, दैट्स वाई कहते हैं, सारी सो के अंडर आते हैं, इसलिए सो दैट नॉन, कि कोई भी नहीं, नॉन का मतलब कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं सुनना चाहिए। वो जानबूझ के धीरे धीरे बोली कि किसी को, वो जानबूझ के धीरे बोली कि किसी को नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। चलो ये हमारे 4 है, एक और कर लेते हैं, तो इसको बाद हम इसको विराम देंगे, थोड़ी सी वोकैबुलरी कर लेंगे। मुझे नहीं पता आप सभी के पास कितना टाइम है, थोड़ा टाइम तो है आप सभी के पास, थोड़ा थोड़ा हम वोकैबुलरी भी कर लेते हैं साथ में थोड़ी सी, ठीक है। Yes sir. Yes sir. फादर एडवाइस, पिता ने एडवाइस किया, क्या एडवाइस किया, हिज सन्स, अपने बच्चों को, इन ऑर्डर दैट दे शुड, कि उनको करना चाहिए वर्क हार्ड। फादर एडवाइज्ड हिज सन्स इन ऑर्डर दैट दे शुड वर्क हार्ड, अपने बच्चों को वो एडवाइस दे रहा है एक ऑर्डर के साथ, इन ऑर्डर, ये वो वाला ऑर्डर नहीं है, आदेश वाला नहीं है, ये दूसरा ऑर्डर है। हर चीज जो आपकी व्यवस्थित ढंग से होती है, आपकी जिंदगी एक ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए, एक व्यवस्थित होनी चाहिए, डिसिप्लिन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, ये उस तरह का ये ऑर्डर, ठीक है, ये उस तरह का ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब समझते हो, ऑर्डर 2 तरह के, एक ऑर्डर होता है आदेश देना, एक ऑर्डर होता है व्यवस्थित, कि आपकी जिंदगी ऑर्डर में नहीं है, क्या करोगे जिंदगी में, आपकी जिंदगी ऑर्डर में ही नहीं है, ठीक है, हर चीज को एक उसमें क्लासिफिकेशन होता है, हर चीज का वर्गीकृत होता है, ठीक है। फादर एडवाइज्ड हिज सन्स इन ऑर्डर दैट दे शुड वर्क हार्ड, ठीक है, तो ये उसका एक नतीजा निकलेगा, अगर वो कहेगा कि हाँ बेटा तुम वर्क हार्ड करना चाहिए, तो एक अच्छा नतीजा निकलो। अब हम कर लेते हैं हमारा आज का जो नेक्स्ट चीज है, कल हम करेंगे शुड के जो बाकी के 4 बच्चे हैं उनके ऊपर वर्कआउट करेंगे, इसको हम खत्म कर Yes. देंगे, फिर हमारी धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ग्रामर हमारी बहुत जरूरी है, विदाउट ग्रामर यू कांट बी एबल टू स्पीक अप्रोप्रिएटली, ठीक है, ओके। तो
अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं अपनी ग्रामर, ठीक है। ओके, देखो मैं कहता हूँ कि वोकैबुलरी सेक्शन के ऊपर आता हूँ मैं, वोकैब जो कि हमारी रोज का काम है, इसके बिना आपका गुजारा नहीं है। यू शुड मेंटेन योर वोकैबुलरी एवरी डे, ओके। ओके, कटौती करना, हमें सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अपनी किसी भी इसमें कटौती कर सकते हैं, लेकिन हम अपने परिवार वालों के साथ जो है वो कटौती, इनकी कटौती नहीं कर सकते। कैसे? ना तो हम खाने में कटौती कर सकते हैं, ना हम पढ़ने में कर सकते हैं, और ना ही हम अपने जीवन के जो हमने एक स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उससे लो लेवल पे हम नहीं जा सकते। ठीक है? कटौती, कटौती की इंग्लिश क्या होती है? घटाना जिसे कहते हैं, कटौती या घटाना। इसकी इंग्लिश क्या होती है? How will speak? What does it mean? कटौती या घटाना। चलो, कर्टेल, बोलने के क्या? कर टेल। curtail, किसकी टेल? हाँ, किसकी टेल? curtail, कर्टेल, कर्टेल, ठीक है, इस तरह से याद होगा, कर्टेल, ठीक है। अच्छा, किसी चीज का अगर कटौती है तो उसका उल्टा क्या होगा? बढ़ना। बढ़ने की इंग्लिश क्या आ गई? increase, इंक्रीज, वेरी गुड। बढ़ना इंक्रीज भी है, और इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या आ जाएगा? एनलार्ज, enlarge, लार्ज, ENLARGE, एनलार्ज। लार्ज के साथ मिलके एन का प्रयोग हो गया, तो क्या बन गया? एनलार्ज, एनलार्ज, ठीक है। एनलार्ज मतलब बढ़ जाना किसी चीज का। ये मेडिकल की भाषा में बहुत यूज होता है कि आपका लीवर जो है वो एनलार्ज हो चुका है। कभी आप उसमें देखोगे ना, सिम्टम्स देखोगे तो उसमें इंप्रेशन दिए होते हैं, तो इंप्रेशन के अंदर जाओगे तो आपको समझ आएगा कि ये कभी भी कोई चीज आपको रहती है तो उससे पढ़ा करो थोड़े ध्यान से, इसमें लिखा है, ठीक है। yes sir, तो क्या आ गया हमारा? एनलार्ज, ठीक है। ये ना आपने जैसे आप रोज करते हो ना, तो आप इसकी इतनी तैयारी कर लो कि आपको समझ आ जा करे कि हम सर ने जो पढ़ाया वो आपके दिमाग से वॉश आउट ना हो जाए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर ये चीजें आपके दिमाग से वॉश आउट हो जाएंगी तो फिर हमारे पढ़ने का जो फायदा है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, वॉश आउट नहीं करनी, वॉश आउट होने ही नहीं देनी है। शुरू में आपको रोज, बाद में आपको हफ्ते में 2 बार, फिर धीरे धीरे हफ्ते में 1 बार, फिर महीने में 1 बार। किस लिए? उस चीज का अभ्यास करने के लिए, जो हमारी वोकैबुलरी होती है, एक तरीका होता है इसको पढ़ने का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज लगाता हूँ, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कोई चीज है। ठीक है, जल्दी क्लास खत्म कर दूंगा, मुझे पता है वो उसके नहाने का टाइम हो जाता है। क्या नाम है? सिमरन के और उसका, हाँ, खुशबू के, दोनों के नहाने का टाइम हो जाता है। फिर कहते हैं सर हमें जाना है, हमें नहाना है। ठीक है मेरे बच्चों, नहाओ धो तैयार हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले मैं इसको एक चीज करता हूँ मैं इधर। ओके, तो हाँ, ये यहाँ पे देख, अब देख, यहाँ पे इसको मैं कैसे लिखूंगा? तो सर्च ब्लॉग, ये इसे लिखता हूँ। देख, अब यहाँ पे है कर टेल, कर टेल, कैसे बोलना है इसको? curtail, कर टेल, एन large, लार्ज, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम। तो तान्या बेचारी ऑनलाइन ही नहीं हो पा रही, उसका कब से वेटिंग आ रही है। उसके बाद ना नेटवर्क की इशू बहुत ज्यादा है उत्तराखंड में। ये हमें उनके ऊपर, तो अगला करते हैं। जैसे आप एक दूसरे की मदद भी कर सकते हो। कैसे? कि जैसे वो ऑनलाइन नहीं हो पा रही है तान्या, तो आप उसको वो कर देना, उसको बता देना बाद में। ठीक है, जैसे आपका कोई फ्री टाइम होता है आप उसमें बता देना उसको। ठीक है, ओके। okay sir, अगला होता है शुष्क। अभी क्या होगा कि अभी जैसे मौसम धीरे धीरे गर्मी होती जाएगी, तो गर्मी में तो ठीक होता है, सर्दी में शुष्क हो जाता है, सॉरी, सर्दी में सूखी चीजें होनी शुरू हो जाती है, सूखा हो जाता है सारा, तो सूखा, जिसे हम कहते हैं शुष्क। त्वचा हमारी क्या होती है? शुष्क हो जाती है, चाहे ऑयली स्किन भी हो तब भी वो शुष्क होनी शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा ठंड के अंदर। dry sir, सूखा, बिल्कुल ड्राई, ड्राइनेस होती है, और हम इसको कहते हैं एरिक, एरिक, arid, क्या बोले? एरिक, arid, एरिक, एरिक। अच्छा, अब गीले की इंग्लिश तो पता ही है, आप सभी को बताने की ज्यादा wet, जरूरत नहीं है। yes वेरी sir, गुड, गीला, गीला, और wetted, जिसे हम कहते हैं नम, नम जिसे कहते हैं नमी होती है, किसी चीज के अंदर नमी है। कपड़े हम जब वॉशिंग मशीन से भी निकालते हैं पूरे सूखे तो नहीं होते, हल्की हल्की नमी होती है उनके अंदर भी, चाहे yes जितना sir, मर्जी ड्रायर आप यूज कर लो, तो वो हो गए आपके वेट। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है आपका? माइग्रेट, माइग्रेट क्या होता है? कहीं और पास जाना, कहीं और
बस जाना। तो क्या होती है माइग्रेशन, माइग्रेट, माइग्रेट, ठीक है। तो क्या बोलोगे Yes, sir. माइग्रेट, याद करने का तरीका क्या है, माइग्रेट की मैं ग्रेट हूँ, हालांकि स्पेलिंग अलग है, ग्रेट के स्पेलिंग GREAT होता है, इसमें GRATE है। तो माइग्रेट उसमें भी MY होता है, इसमें मैंने इसको मैं ऐसे याद करता हूँ माइग्रेट की, मैं महान हूँ क्योंकि मैं कहीं और जाके बस गया, आप महान हो क्योंकि आप कहीं और आके बस गए। जो सिमरन है ये झारखंड से है, ये पंचकूला आके बस गए। शोभा नेपाल से है, ये अपना डेराबस्सी में आके बस गए। ठीक है, हर कोई कहीं ना कहीं बसा हुआ है, ठीक है, Yes, sir. माइग्रेट हुआ है, ठीक है। ओके, अब आ गया कि वापसी की इंग्लिश तो आपको पता ही, रिटर्न, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, आपको याद है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। Yes, sir. अच्छा, अभी क्या होता है कि कुछ बॉस तो बहुत अच्छे होते हैं जो आपको बहुत कोऑपरेट करते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मैन हो, कोई बॉस वगैरह होते हैं, लेकिन कई तो बड़े घमंडी होते हैं, बहुत घमंडी टाइप से होते हैं। आपको सीधे ढंग से आप गुड मॉर्निंग भी कर दो ना, आगे से बस मुंह बना देंगे, हिला के चलेंगे, कि आपको कह दें वेरी गुड मॉर्निंग बड़े प्यार से। तो वो ऐसे जो घमंडी होते हैं उनकी इंग्लिश क्या होती है? arrogant, Arrogant. एरोगेंट। हाँ, अभिमानी, अभिमानी मतलब। ये और किसको पता था और किसको नहीं पता था? मुझे पता था सर. एरोगेंट, मुझे नहीं ठीक है, पता था। ओके। और इसका उल्टा क्या होता है? विनम्र। अभिमानी का उल्टा क्या होता है? Polite. विनम्र। विनम्र की इंग्लिश क्या है? विनम्र, Kind. विनम्र, काइंड हो गया, वो तो दयालु हो गया, वेरी गुड, इसको हम कहते हैं मॉडेस्ट, मॉडेस्ट। Modest. Yes, sir. क्योंकि आपको इंग्लिश उस लेवल पर लेके जानी है जहां पे कि सभी लोग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल किसने कह दिया ही इज वेरी मॉडेस्ट पर्सन, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो विनम्रता की बात है, वो विनम्र आदमी है, इज वेरी Yes. ऑनेस्ट, विनम्र है। और इसको एक और जगह यूज कर सकते हैं, मामूली, ऑर्डिनरी के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इज वेरी मॉडेस्ट, इज वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत सत्य के ऊपर जीता है, बहुत सिंपल जिंदगी है उसकी, ठीक है। ओके, साधारण की इंग्लिश क्या होती है? साधारणता, जैसे मैं कहता हूँ कि हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, बोलता रहता हूँ रोज ही बोलता हूँ। हाँ, Simplicity. नहीं, साधारणता वो तो पहनावे में आ गई या व्यवहार में, जनरल, जनरल क्या होगी? जनरल, साधारण। देखो हम कहते हैं ना यार, जनरली होता क्या है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास टाइम बच जाता है, जनरली साधारणता, यही होता है ना हमारे पास साधारणता। अब दूसरा जो आप साधारण कहते हो, सिंपलिसिटी या सिंपल, वो कहते हैं वो दूसरे साधारण, जैसे वो इंसान से उसके व्यक्तित्व के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर आप साधारण चीज को यूज कर रहे हो। यार देख उसकी सिंपलिसिटी कितनी अच्छी है, और सिंपल हो के भी कितना अच्छा है, ठीक है। Okay. Okay. अब होता है पक्षपात। पक्षपात की इंग्लिश क्या है? पक्षपात, Discrimination. पक्षपात, डिस्क्रिमिनेशन होता है, हाँ वो होता है शोषण होता है, डिस्क्रिमिनेशन। अब ये पक्षपात, पक्षपात या अधूरा, इसकी कहते हैं पार्शल, पार्शलिटी करता है वो बंदा, इसी से बना पार्शलिटी, पार्शल कहते हैं ना, बड़ी पार्शलिटी करता है, बड़ा पक्षपात लेता है, बड़ा पक्षपात करता है, पार्शलिटी करता है। पक्षपात की इंग्लिश जो बेसिक है वो होती है पार्शल, ठीक है। आती आप सभी को है ज्यादातर इंग्लिश, लेकिन आप उसको यूज नहीं करते हो डेली लाइफ में, इसलिए आप आपके मुंह पे वो आती नहीं है, टाइम टाइम पर वो निकलती नहीं है आपके मुंह से, क्योंकि आपको आती तो है लेकिन आपने उसको यूज ही नहीं किया है, ठीक है। एक आखिरी कर लेते हैं, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद की इंग्लिश क्या है? ये हमेशा After यूज that. होता है, वेरी गुड, देयर आफ्टर, उसके बाद, देयर Yes, आफ्टर, sir. उसके बाद क्या हुआ? देयर आफ्टर दैट, देयर आफ्टर, ठीक है, ओके। और अच्छा, आप सभी गौशाला वगैरह जाते हो कि कहीं कभी ना कभी कुछ दान करते हो कि गौशाला में जाके? Yes, sir. ओके, गौशाला, हाँ गौशाला की इंग्लिश क्या होती है? Mm, कौशल, कौशल, Question. कौशल, गौशाला, अच्छा, Kaushad. Okay, sir. Gaushala. गौशाला, गौशाला, ठीक है। जिंदगी में एक Yes, चीज sir. याद रखें, चाहे मैं एक टीचर हूँ लेकिन फिर भी आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में आपके साथ बहुत ज्यादा अच्छा ही अच्छा रहे, बुरी चीजें कम हो जाए, खत्म बेशक नहीं होती, तो गौशाला में जाके जरूर कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से उनको कुछ, चाहे 10 रुपए कुछ चीज उनको जाके हरा चारा दे, जो आपका दिल करे आपके, वो आपकी Yes, मर्जी है, ठीक है। Okay. क्योंकि ये हमारे सबके हैं, ये वाकई में वर्क करती है, नेचर के ऊपर वर्क करती है, ये हमारे क्या आते हैं, हमारे विश्वास होती है, हमारी आस्था की। इसकी इंग्लिश क्या आती है विश्वास और आस्था की? Trust. हाँ, बिलीव, बिलीव, Belief. ट्रस्ट कह सकते हो, बिलीव बहुत अच्छा इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है, आस्था, आस्था, ठीक है, ओके। और जो मंदिर में पुजारी होते हैं उसकी इंग्लिश क्या होती है? पंडित को सर आपने बताया था किस तरह से. वेरी गुड, प्रीस्ट, Priest. प्रीस्ट पंडित. मतलब पुजारी, Okay, sir. पुजारी, तो पूजा जो वर्शिप करते हैं, ठीक है, चैंटिंग्स करते हैं, ठीक है, ओके। और पूजा के बाद हम घर आ गए तो पड़ोसी थोड़े ऐसे कई बार मिल जाते हैं जो भड़काने वाले होते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्या छोड़, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। तो वैसे क्या होते हैं, भड़काने वाले की इंग्लिश क्या होती है? भड़काने वाले,
इंस्टिगेटर, गेटर इंस्टिगेटर, भड़काने वाले बोले तो हाँ जी, वो मतलब क्या होता है? इंस्टिगेटर भड़काने वाले, भड़काने वाले, ठीक है। भड़काने वाले का मतलब समझे नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो समझो नहीं आपका सर, प्रोवोक मतलब प्रवोक होता है उसको Provoke- उठाना, उस चीज को जगा देना, सोई हुई चीज को जगा देना। कैसी कोई वैसे सोए हुए इंसान को नहीं जगाना, जिसे मैं कहता हूँ कि जिसे देखो एग्जांपल है कि उसने झगड़ा प्रवोक करवा दिया, दो बंदे शांत बैठे थे, जाके उसने प्रवोक कर दिया, उसने ऐड फ्यूल टू द फायर कर दिया, प्रवोक कर दिया, उसे जगा दिया उस चीज को। समझ आई मतलब प्रवोक का क्या होता है? ठीक है, बोलो क्या समझ आई प्रवोक क्या होता है? उकसाना किसी चीज को, Yes, sir. उकसा देना एकदम से। दो बंदे चुपचाप बैठे हैं, जाके बैक बाइटिंग की, ऐड फ्यूल टू द फायर कर दिया और इंस्टिगेटर हो गए इसके बीच में। आपने किसका रोल प्ले किया? इंस्टिगेटर का, भड़काने वाले का, जो कि लास्ट में लिखा है। ठीक है, तो इसके लिए देखो, इसके लिए कौन सी आपकी वोकैबुलरी बन गई? देखो अभी बैठे बैठे हमने इसकी वोकैबुलरी की शाखाएं ब्रांचेस बना दी। एक तो बैक बाइटिंग आ गया, Yes, चुगली। sir. अब जो चुगली करने वाला है वो इंस्टिगेटर है, क्योंकि इसका जो करता है, जिसका डूअर है वो कौन है? इंस्टिगेटर है। अब बैक बाइटिंग, अब उसको प्रोवोक कर दिया, जो चुप कर जब सोया हुआ था बेचारा, किसी कोई मतलब नहीं था, भड़का दिया उसको जाके, अरे तुझे पता है तेरे बारे में वो क्या कराया? नहीं मुझे नहीं पता, उसने ये कहा। अब वो भी क्या पागल सा, उसने बिना सोचे समझे गया उसके साथ लड़के वापिस, तो प्रवोक हो गया वो। ठीक है, अच्छा प्रवोक हुआ, इसकी फ्रेजेस क्या, इडियम्स क्या? ऐड फ्यूल टू द फायर। Add fuel to the fire. ठीक है, देखो जब भी आप कोई चीज करते हो तो साथ अगर उसकी कोई फ्रेजेस बने हैं या उसके इडियम्स थे, तो सबसे अच्छा इडियम्स लगा दो, इंग्लिश हाई लेवल की चली जाती है। ठीक है, Yes, sir. तो हमेशा जिंदगी में क्यूरियस बनना, जिज्ञासु बनना, अनाड़ी मत बनना कभी। अनाड़ी का कोई काम नहीं है दुनिया में, अनाड़ी का। किसका? Anadi. हाँ, अनाड़ी। ठीक है। अब अनाड़ी की इंग्लिश क्या होती है? अनाड़ी की इंग्लिश क्या होती है? क्लमजी, क्लमजी, Clumsy. क्लमजी, क्लमजी। जी टीवी होता है ना, जी पीछे जी लगाना है, क्लमजी। कलम होती है जिससे आप लिखते हो, जिससे आप लिखते हो उसको कलम कहते हैं। देखो क्या बोलते हैं उसको? कलम। पेन, पेन को हम क्या बोलते हैं? कलम। उसके साथ आपने चैनल, जी चैनल जोड़ दिया, अब इसको जोड़ दो, क्या बन गया? कलम जी। Clumsy. तो ये वो है, इस तरह से बोलना है, कलम जी, क्लमजी। थोड़ा सा फास्ट बोलोगे तो ये अटैच हो जाएंगे आपस में, एक दूसरे के जुड़ जाएंगे। क्लमजी, इज वेरी क्लमजी, क्लमजी। देयर इज नो रोल ऑफ क्लमजी इन एक्टिव वर्ल्ड। ये मैंने कहीं से देखा नहीं, कहीं पे नहीं है, अभी बैठे बैठे मैंने बना दिया ये वर्ड, देयर इज नो रोल ऑफ क्लमजी इन एक्टिव वर्ल्ड। ठीक है, आपने ऐसे ही अपनी चीजों को बनाते जाना है, जो आपकी चीजें आप उसको एनालाइज करो और बनाते जाओ। और जिंदगी में कभी एक चीज याद रखना, निराश मत होना, कुछ भी हो जाए। तो निराश की इंग्लिश क्या आती है? निराश, डेस्परेट, DESPERAT, डेस्परेट होता है निराश। ठीक है, जो Rush. ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते, जो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते वो कौन से होते हैं? डेस्परेट होते हैं हमेशा दुनिया में। ठीक है, Yes. ठीक है, जिनके अंदर एंथुसियाज्म नहीं आता। एंथुसियाज्म क्या होता है? वो आपका उत्साही जो होता है, जिसको हमेशा उत्साह बना होता रहता है, एंथुसियाज्म। ठीक है, Enthusiasm. ठीक है, ओके। तो अभी के लिए बहुत है ये वर्ड। ठीक है, Yes, अब मुझे sir. पता है आप सभी के Yes, जाने का sir. टाइम है, नहाने धोने का टाइम है। मेरा तो कुछ नहीं, मैं आपको 1-2 घंटे और भी पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप सभी के नहाने धोने का, जाने का टाइम है ऑफिस के, और जो अपनी स्टडी का। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी कैसी थी? It क्या was good, सीखा sir. आपने? Thank you. It was Okay. I learned so much vocabulary, sir. Oh, that's nice. I Which also. make our sentence easy to speak. Yes. क्या बात है। देखो शोभा से हमने क्या चीज सीखी कि ऑन द स्पॉट आपको इंग्लिश कैसे यूज करनी है, उसको कैसे आपको लेके आना है चीजों। ठीक Yes, है, sir. ठीक है। देखो आप एक दूसरे के साथ खुलोगे ना तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा। आप, बड़ी चीज है कि आप सभी गर्ल्स हो, गर्ल्स तो एक दूसरे के साथ कौन हो सकती है। अब बड़ी बात है Right. आपकी क्लास में कोई लड़का तो है नहीं स्टूडेंट, जो इसके सामने वो आपकी खिल्ली उड़ाएगा या आपको उससे हेजिटेशन हो गया तो सीधा सीधा बोल सकते हो, है ना। Right, sir. ठीक है, और मैं आपको ये भी दे दिया करूंगा, ये जो है ना, जो टीम सॉफ्टवेयर है, इसको मैं वो कर दूंगा ताकि आप इसे ओपन करके मैं आपको दे दिया करूंगा। आप इसे खुद ही एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है, ताकि मैं चाहे ना भी हूँ यहाँ पे, मैं लॉग ऑफ भी हूँ, मुझे नहीं पता इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा होगा, वो आप एक दूसरे उससे आपकी इंग्लिश अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी, उससे बातें करोगे, आप इंग्लिश के दबंग बन जाओगे। दबंग की इंग्लिश Right. क्या होती है? असर्टिव। Dabang. Assertive. I want to assertive in English, sir. आई वांट टू बी
I want to be I- assertive in I English. wanna be, and then अब I इसकी will इंग्लिश be. और तेज कर दो. Very good, very nice. I wanna be assertive. I wanna be. Okay sir. Sir जैसे want to होता है उसको एडवांस इंग्लिश में wanna be कह सकते हैं. बिल्कुल एग्जैक्टली. Okay. I I wanna be. want to को ही वाना बोला जाता है, क्योंकि अंग्रेज वगैरह ये want to यूज नहीं करते, सीधा वाना बोलते हैं. यू वाना गो. Yes sir. ठीक है, Wanna- ये सारे wanna- इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब आजकल एक बहुत नया वर्ड चला हुआ है, तो जिसे हम कहते हैं दबंगई के अंदर ही आता है, जिसके अंदर प्रभुत्व है, बहुत ज्यादा बदमाशी के अंदर है, बहुत ज्यादा उसमें रहता है अपने, उसको कहते हैं बैड एस. बैड एस. Bad है. ठीक है, जिसके अंदर दबंगाई है, बहुत ज्यादा अपनी अपनी जिसे कहते हैं कि बदमाशी जिसे हम कहते हैं, उसी के अंदर ही वो अपनी सारी चीजें करता है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, उसको कहते हैं बैड एस. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं. अनेक गुणों वाला, चलो जाते जाते एक आखिर कर लो, उसके बाद क्लास क्लोज करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे गुण हो. गुण. वर्सेटाइल. Versatile. वर्सेटाइल. ठीक है, मैं कहता हूँ ऑल ऑफ यू माय गाइस, यू हैव यूनिक पर्सनालिटी एंड यू आर वर्सेटाइल. ठीक है, गुणी हो तुम. पर- Okay. वेरी गुड. गुणी हो, जिसके अंदर अनेक गुण हो, बहुत सारे गुण हो. अनेक गुण हो, गुणी हो, गुणी. वर्सेटाइल. ठीक है, तो आई है. वांट यू टू add fuel to the fire inside yourself in the matter of just English. ठीक है, ऐड फ्यूल Yes. टू द फायर का मतलब अकेला ये भी नहीं होता कि किसी को भड़काने ही हो जाएगा. ऐड फ्यूल टू द फायर ये भी हो जाएगा कि आप बुझे हुए अंदर से आप अपने को जगा रहे हो. जैसे वो Yes, कहते हैं ना रावड़ी राठौर में अपने सिर के पीछे मारता है अक्षय कुमार, उठ शाबाश उठ उठ अपने सिर के पीछे, तो ऐसे कहते हैं ऐड फ्यूल टू द फायर. ठीक है, Yes sir. चलो ठीक है, फिर मिलते हैं. ओके, बाय फॉर नाउ, हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे विद ऑस्पिशियस एनर्जीज. Thank you sir. Same Thank you, for sir. You too. everyone. यू वेलकम बैक. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye everyone. Welcome.